Welcome students to new chapter Dream Children a Review. Today we are going to read fourth chapter of our book Dream Children, an essay written by Charles Lamb. आप चार्ल्स लैम्ब के लिखे हुए ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी इस essay को हम पढ़ेंगे. Charles Lamb is considered as the prince of English essays. He wrote many autobiographical essays and out of them this essay Dream Children आपको पढ़ना है, आपके कोर्स में है. और ऐसे पढ़ने से पहले हम लैम्ब के बारे में, एसेइस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है. Lamb was nearing 50 when he wrote this fine essay. It becomes clear, especially from the last line, that at that time the death of his elder brother John Lamb was fresh and heavy on his mind. In his youth, he had a disappointing love affair with a girl named Anne Simmons, who afterwards married a man named Bertram. तो चार्ल्स लैम्ब के बारे में हम क्या जानते हैं? चार्ल्स लैम्ब when young he had a love affair. उनका एक डिसअपॉइंटिंग लव अफेयर था एन सिमोन्स के साथ में, जिसने बाद में बर्ट्रम, जो एक लंदन पान ब्रेकर था, उससे शादी की. चार्ल्स लैम्ब जो हैं, उनके ब्रदर जॉन लैम्ब की इस ऐसे लिखने के पहले डेथ हुई थी. उनकी उम्र इस ऐसे को लिखने के समय करीब 50 इयर्स थी और वे अपने ब्रदर की डेथ से दुखी थे जिस समय उन्होंने यह ऐसे लिखा. Lamb was also influenced in his childhood by his grandmother Pete, housekeeper of Blacksware House in Hertfordshire, where he sometimes spent his holidays. तो लैम्ब ने अपनी छुट्टियां कई बार अपनी दादी माँ फील्ड के साथ में बिताई, जो कि एक बहुत बड़े मकान की हाउसकीपर थी. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम अब पढ़ेंगे. ही वॉज अ बैचलर लिविंग विथ हिज सिस्टर मैरी हु वॉज सब्जेक्ट टू फिट्स ऑफ मैडनेस. वो एक बैचलर थे, क्रॉनिक बैचलर. उनकी कभी शादी नहीं हुई थी और वो अपनी सिस्टर मैरी के साथ में रहते थे, जो कि जैसे कि पागलपन के दौरे आते थे. तो उनकी जिंदगी, उसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, उनकी परेशानियों की. तो हम आइए इस ऐसे को पढ़ते हैं. ड्रीम चिल्ड्रन ये एक ऐसे है जिसमें चार्ल्स लैम्ब अपने इमेजिनरी चिल्ड्रन एलिस और जॉन से बात कर रहे हैं और उन्हें स्टोरी सुना रहे हैं. किसकी? अपनी ग्रैंडमदर फील्ड की, अपने ब्रदर जॉन लैम्ब की. तो देखते हैं वो क्या सुना रहे हैं. Children love to listen to stories about their elders when they were children to stretch their imagination to the conception of a traditionary great uncle or granddame whom they never saw. It was in this spirit that my little ones crept about me the other evening to hear about their great-grandmother Field, who lived in a great house in Norfolk, 100 times bigger than that in which they and Papa lived, which had been the sea. So at least it was generally believed in that part of the country of the tragic incident which they had lately become familiar with from the ballads of the children in the wood. तो इस पैरा में लैम्ब जो है वो अपने बच्चों को, इमेजिनरी चिल्ड्रन एलिस और जॉन को स्टोरी सुना रहे हैं. उनका कहना है कि बच्चों को अपने बड़ों के बारे में, जब वे छोटे बच्चे थे उनके बारे में स्टोरी सुनना पसंद है. और उन्हें चार्ल्स लैम्ब जो है उनकी ग्रैंडमदर फील्ड के बारे में बता रहे हैं, who lived in a great house in Norfolk, जो नॉर्फॉक में एक बहुत बड़े मकान की में रहती थी. Certain it is the whole story of the children and their cruel uncle was to be seen fairly carved out
in wood upon the chimney piece of the great hall. The whole story down to the robin redbreast till a foolish rich person pulled it down to set up a marvel one of modern invention in its stead, with no story upon it. तो जिस मकान में ग्रैंडमदर फील्ड रहती थी उस मकान को ये गिरा दिया गया और वहां पर एक नया मार्बल का मकान बना दिया गया। Here Alice put one of her dear mother's looks, too tender to be called a breedy. अब एलिस जो है वो चार्ल्स लैम्ब की डॉटर का नाम है ऐसे में, और जब एलिस को लैम्ब ने देखा तो उन्हें उसकी डियर मदर की लुक एकदम दिखाई दिए और वो इतनी अच्छी लग रही थी कि वो उसे अपग्रेड करना, डांटना नहीं चाहते थे। Then I went on to say how religious and how good their grandmother Field was, how beloved and respected by everybody, though she was not indeed the mistress of this great house, but had only the charge of it. Yet in some respect she might be said to be the mistress of it too, committed to her by the owner, who preferred living in a newer and more fashionable mansion which he had purchased somewhere in the adjoining county. But still she lived in it in a manner as if it had been her own, and kept up the dignity of the great house in a sort while she lived, which afterwards came to decay, and was nearly pulled down, and all its old ornaments stripped and carried away to the owner's other house, where they were set up, and looked as awkward as if someone were to carry away the old toms they had seen lately at the Abbey and stick them up in Lady Towerdy's gilt drawing room. Here John smiled, as much as to say that would be foolish indeed. तो देखिए इस पैरा में लैम्ब जो है बच्चों को उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर, लैम्ब की ग्रैंडमदर थी तो लैम्ब के बच्चों की वो क्या हुई, ग्रेट ग्रैंडमदर। तो ग्रैंडमदर फील्ड के बारे में बता रहे हैं। ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपको ये ग्रैंडमदर फील्ड का कैरेक्टर स्केच जो है वो लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा, तो हमें मालूम होना चाहिए। देखिए हम समझते हैं, पढ़ते हैं। Grandmother Field was how religious, मतलब she was a religious lady. She was beloved and respected by everybody. She was not the mistress of this great house. वो उस बड़े मकान की मालकिन नहीं थी, but she had only charge of it. परंतु और उनका जो ऑनर था, who preferred living in a newer and more fashionable mansion. उसने एक नया मकान खरीद रखा था तो वो वहीं रहता था, परंतु she lived in it in a manner as if it had been her own. वो उस मकान में ऐसा रहती थी जैसे कि वो उनका ही हो, and kept up the dignity of the great house in a sort while she lived. जब तक वे रहीं तब तक उन्होंने इस मकान की डिग्निटी को बना के रखा, जिसे कि बाद में पुल डाउन, गिरा दिया गया, एंड ऑल इट्स ओल्ड ऑर्नामेंट्स, वो ओनर के एक नए मकान पर ले जाकर रखे गए और वहां पर वो कैसे लगे, ऑकवर्ड। And then I told how when she came to die, her funeral was attended by a concourse of all the poor and some of the gentry too. और इसके बाद चार्ल्स लैम्ब जो है उन्होंने ग्रैंडमदर फील्ड के फ्यूनरल के बारे में बताया। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका फ्यूनरल जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा, कॉन्कोर्स, एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों के द्वारा अटेंड किया गया, ऑल द पुअर, और उसमें कुछ सम ऑफ द जेंट्री टू, कुछ जेंट्री के पीपल भी थे, और जो कहाँ से आए थे, ऑफ द नेबरहुड फॉर मेनी माइल्स राउंड, टू शो देयर रेस्पेक्ट फॉर हर मेमोरी,
because she had been such a good and religious woman. So good indeed that she knew all the Psalter by heart, aye, and a great part of the Testament besides. और दादी माँ की मेमोरी जो थी उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, होमेज देने के लिए आसपास से मेनी माइल्स, कई मीलों से लोग आए थे। और वे एक बहुत अच्छी और रिलीजियस वुमन थी, और इतनी अच्छी थी कि उन्हें सारी सॉल्टी जो डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं उन्हें सॉल्टी कहा जाता है, वो उन्हें बहुत सारे याद थे। और ग्रेट पार्ट ऑफ टेस्टामेंट बाइबल का बहुत सारा हिस्सा भी उन्हें मुंह से याद था। जो ये लेसन है, इसके हार्ड वर्ड लेसन के बिगनिंग में मैंने आपको इसकी ग्लॉसरी दे रखी है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं और सारे हार्ड वर्ड्स जो हैं वो आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद लैम ने आगे अपने बच्चों को बताया, Here little Alice spread her hands. Then I told what a tall, upright, graceful person their great-grandmother Pete once was, and how in her youth she was esteemed the best dancer. Here Alice's little right foot played an involuntary movement, till upon my looking grave it resisted. The best dancer, I was saying, in the county, till a cruel disease called a cancer came and bore her down with pain. But it could never bend her good spirits or make them stoop. But they were still upright because she was so good and religious. लैम ने बच्चों को बताया कि when grandmother was young, she was a tall lady, लंबी थी, upright, सीधी खड़ी होती थी, graceful थी, और in her youth she was esteemed the best dancer. उन्हें उनके यूथ में सबसे अच्छा डांसर माना जाता था। और जैसे ही डांस की बात आई, उनकी डॉटर ने, इमेजिनरी डॉटर एलिस ने अपने पैर को डांस की मूवमेंट में हिलाना शुरू किया। लैम ने उसे घूर कर देखा और वो रुक गई। फिर लैम ने बताया कि उनकी दादी माँ जो है वो शी वॉज अ ग्रेट डांसर अनटिल, कब तक थी वो डांसर? जब तक कि उन्हें एक क्रूअल डिजीज, कैंसर जो है उसने उनको पकड़ न लिया और उन्हें दर्द से झुका दिया। बट इट कुड नेवर बेंड हर गुड स्पिरिट, परंतु मरने तक भी वो उन्होंने अपनी गुड स्पिरिट्स को ऊपर रखा और मेक देम स्टूप, और उसे वो झुका नहीं पाए, वे हमेशा सीधी खड़ी रही, बिकॉज शी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस। Then I told how she was used to sleep by herself in a lone chamber of the great lone house, and how she believed that an apparition of two infants was to be seen at midnight gliding up and down the great staircase near where she slept. But she said those innocents would do her no harm, and how frightened I used to be, though in those days I had my maid to sleep with me, because I was never half so good or religious as she, and yet I never saw the infants. And next पैरा में हम बता रहे हैं कि उस घर में दो बच्चों के इन्फेंट, शिशुओं के इन अपरिशन घोस्ट, भूत जो है वो वहां पर मिडनाइट, आधी रात को नीचे छत से सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए दिखाई देते थे। और दादी माँ फिर भी, ग्रैंड मदर फिर भी इस मकान में अकेली सोती थी। उनका मानना था दोज इनोसेंट्स वुड डू हर नो हार्म, क्योंकि वो इनोसेंट बच्चे हैं तो वो उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। परंतु लैम, वो उस समय छोटे थे और अपनी मेट के साथ सोते थे, परंतु फिर भी उन्हें डर लगता था। और उनका कहना है कि वो उनकी दादी माँ जितने गुड या रिलीजियस नहीं थे और इसलिए उन्हें डर लगता था।
Here John expanded all his eyebrows and tried to look courageous. जॉन जो उनका बेटा है वो भी डर रहा है, परंतु उसने अपने आंखें वाइड करके फैला के अपने आप को बहादुर दिखाने की कोशिश की. Then I told how good she was to all her grandchildren, having us to the great house in the holidays, where I in particular used to spend many hours by myself in gazing upon the old bust of the 12 Caesars that had been emperors of Rome, till the old marble heads would seem to live again, or I to be turned into marble with them. अब लैम जो है उन्होंने बच्चों को बताया कि वे इस घर में उनकी छुट्टियों में अपने दादी माँ के साथ में और दूसरे भाई बहनों के साथ में छुट्टियां बिताते थे और वहां पर 12 सीजर्स की मार्बल बस्ट स्टेचूज रखी थी और वे उन्हें देखते थे, लगातार देखते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि या तो ये स्टेचूज लाइव हो जाएंगी, जिंदा हो जाएंगी या फिर वे भी खुद मार्बल के बन जाएंगे. How I never could be tired by roaming about that huge mansion with its vast empty rooms, with their worn-out hangings, fluttering tapestry, and carved oaken panels, with the gilding almost rubbed out. Sometimes in the spacious old-fashioned gardens, which I had almost to myself, unless when now and then a solitary gardening man would cross me, and how the nectarines and peaches hung upon the walls, without my ever offering to pluck them, because they were forbidden fruit, unless now and then, and because I had more pleasure in strolling about among the old melancholy looking yew trees of firs, and picking fir apples, red berries, which were good for nothing but to look at. लैम का कहना है कि जब वे वहां घर में रहते थे तो पूरा घर जो है, पूरा मैंशन, उसके वास्ट एम्प्टी रूम्स, उसकी हैंगिंग्स, उसकी टेपेस्ट्री, उसकी जिल्डिंग जो थी वो पूरी निकल गई थी, उसमें वो घूमते थे. या फिर वे जो ओल्ड फैशन स्पेशियस बड़ा सा गार्डन था उसमें घूमते थे और वहां पर कभी कभी उन्हें गार्डनिंग मैन दिखता था, अदरवाइज उन्हें कोई नहीं दिखता था और उन्हें नेक्ट्रीन, पीचेस, फ्रूट्स जो है वो इधर से उधर दीवारों पर टंगे हुए दिखाई देते थे और वे उन फ्रूट्स को प्लक करने में उनका इंटरेस्ट नहीं लेते थे जितना कि वो वहां पर घूमने में और उनको एंजॉय करने में उनका मन लगता था. रेड बेरीज देखते थे, फर एप्पल्स देखते थे और सिर्फ उन्हें देखने में उन्हें मजा आता था. और इन लाइंग अबाउट अपॉन द फ्रेश ग्रास विथ ऑल द फाइन गार्डन स्मेल्स अराउंड मी or basking in the orangery, till I could almost fancy myself ripening too, along with the oranges and the limes in that grateful warmth. और वे क्या करते थे, धूप में घास पर लेट जाते थे, ऑरेंजेस और लाइम्स को देखते थे और उन्हें लगता था कि धूप में वे भी पक रहे हैं. और in watching the days that darted to and fro in the fish pond at the bottom of the garden, with here and there a great sulky pike hanging midway down the water in silent state, as if it mocked at their impertinent friskings. I had more pleasure in these busy idle diversions than in all the sweet flavors of peaches, nectarine, oranges, and such like common beds of children. लैम्प का कहना है कि जो बच्चों की जो नॉर्मल बेड्स होते हैं, जो चीजें जो उनको फ्रूट्स दिखते हैं, नेक्ट्रीन दिखते हैं, ऑरेंजेस दिखते हैं और उन्हें वो खाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, इन सब की जगह वो इन्हें सब चीजों को देखने में और घूमने में उन्हें ज्यादा मजा आता था. और वे डेज, एक फिश और पाइक,
इन्हें इनकी फिश पॉन्ड में मूवमेंट देखते थे, उनको एंजॉय करते थे और वे किसी भी चीज को किसी भी तरह से कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो स्टूडेंट्स आज यहाँ तक ही। इसके आगे का ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। टेक्स्ट बुक का जो है, ये टेक्स्ट जो है मैंने आपको पढ़ने के लिए डाला है, क्योंकि आपके पास में अभी टेक्स्ट बुक्स नहीं है। वीडियो को आप रिपीट कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं और टेक्स्ट को आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। समझने में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।